سی پیک میں چینی کمپنی کو دیے گئے 294 ارب کے ٹھیکے میں بے قاعدگی کا انکشاف۔ غیر ملکی ادائیگیوں، عالمی مارکیٹ میں مزید 3 ارب ڈالرز کے بانڈز بیچنے کا اعلان۔ ابھرتی ہوئی پاکستان اسٹاک مارکیٹ کیا مشکل وقت کے لیے تیار ہے؟ روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور معاشی معاملات جو ہیں اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ ایک بہت بڑا چیلنج اور پرابلم ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر بالخصوص میں کہوں گا اور بالعموم ویسے بھی کہہ لیں آپ اوورآل ہی اگر بات کی جائے تو جتنی سورسز آف انفارمیشن ہیں وہ یک طرفہ سی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک ٹولہ ایک طبقہ جو ہے اسی کی رائے ہمیں سنائی دیتی ہے، وہی میڈیا پہ متحرک رہتے ہیں، وہی میڈیا کے اوپر جذباتی ہوئے رہتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے مفادات ہیں۔ دوسری طرف کی ہمیں بات پتہ نہیں لگتی کہ ہے کیا بھائی، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے بگ 5 کی تو اس میں بگ بائی سائز کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، نہیں آئی مین سم تھنگ ایلس، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور ہم ان کی بات سنتے رہتے ہیں جو میڈیا پر زیادہ متحرک ہیں، جذباتی ہیں اور ریئیکشنری ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا اصل حال پتہ نہیں چل پاتا، اور ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یونیفارمٹی ان اوپینین کریٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج خاص طور پہ بڑے اہم مہمان کو ہم دعوت دیں، جناب کامران ناصر صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں JS گلوبل کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ تھینک یو سو مچ علی ناصر۔ کامران ناصر صاحب، میری تمہید اور ابتدائیے میں آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ میرا اشارہ کس طرف تھا، لیکن میں آج زیادہ اس کو متنازع نہیں بتاتا۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ سے بھی آپ کی رائے پوچھوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج تو خیر مثبت ہے، کل بھی یہی حال تھا، اس سے پہلے بڑے ہچکولے کھاتی رہی۔ پچھلے ہفتے میں لوگ بڑے پریشان تھے، یہ FATF کے بارے میں جو مکسڈ قسم کی نیوز آتی رہی۔ میں چاہوں گا تھوڑا اس کو وضاحت سے آپ بتا دیں، پھر اس کے بعد اوورآل اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی FATF کے بارے میں کیا معلومات ہیں اور کیا رائے ہے، مارکیٹ پہ کیا اثر ہوگا؟ بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں علی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا، اور اس کوشچن کا میرے خیال میں اس وقت جواب پورا پاکستان ہی چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے، اور اس کی پرائمری ریزن میرے خیال میں یہ بن جاتی ہے کیونکہ بہت سارے مختلف اوپینینز پاکستان میں فلوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بلیک میں چلے جائیں گے، کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میں کوٹ کروں آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب کو، تو انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی 3 مہینے بعد آپ گرے لسٹ میں تو چلے جائیں گے فار شور، اور بیچ میں آپ کو ایک ایسا ایکشن پلان دینا ہے جو بڑا روبسٹ ہو، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا یا یو ول بی ٹیکن ٹو دا نیکسٹ لیول وچ از دا بلیک لسٹ۔ جی سو دیکھیں، سب سے پہلا میرا ویو یہ ہے کہ جو بلیک لسٹ میں کنٹریز ہیں اس میں جو نام آتے ہیں وہ ہیں ایران کا اور نارتھ کوریا، رائٹ۔ اور میں بہت ہی زیادہ فورسفلی اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو کنٹرولز ہیں نہ وہ ایران جیسے ہیں، نہ ہی ہم نارتھ کوریا ہیں۔ پاکستان ایک ابھرتا ہوا ملک ہے، پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں اس وقت زبردست قسم کی، اور پاکستان آگے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، گامزن ہے۔ ہمارے چیلنجز ضرور ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، اور ہر طرح کے چیلنجز اس ملک میں ہیں۔ 200 ملین سے اوپر کی آبادی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ملک جو ہے یہ کل کو بلیک لسٹ میں چلا جائے گا اور ہمارے پالیسی میکرز اس پر توجہ نہیں کریں گے، میرے خیال میں یہ غلط ایک اندازہ ہے، غلط ایک تاثر ہے۔ پاکستان بڑھ رہا ہے آگے، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پلان سبمٹ کیا جائے گا۔ جسٹ وانٹ ٹو ریفر ہیئر، اصل میں پرابلم یہ بات تو آپ نے صحیح کی، مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ذرائع ابلاغ پہ آیا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کے فیصلے ٹویٹر کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کی جو پہلے ٹویٹ آئی تھی نا، ایسا تاثر گیا سرمایہ کاروں کو کہ جناب بچ گئے جان، اس دفعہ جان بچ گئی، اگلی دفعہ دیکھیں گے، تو وہ کچھ مکس ہو گیا نا، اس کی وجہ سے مکسنگ آئس اینڈ فائر، اس سے پرابلم ہوئی۔ بالکل ایسا ہوا تھا کہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن سے ضرور کریٹ ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں فورن آفس سے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی ٹویٹ کا کیا ریزن تھا۔ ایم شور کہ وہ بلا وجہ تو نہیں کی گئی ہوگی، لیکن میں اگر اس کے آؤں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، میں اس کی طرف لانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ 2012 سے لے کے 2015 تک بھی پاکستان گرے لسٹ کا حصہ تھا،
یہ وہ پیریڈ ہے جس 3 سال میں آپ کی اکانومی نے بہت زیادہ گرو کیا, آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نارتھ چلی گئی, آپ کا ملک جو تھا اس میں ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہوا, 2013 کے اندر ایک الیکشن کے اندر ایک پبلکلی الیکٹڈ گورنمنٹ سے دوسری پبلکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اور پاکستان نے زبردست ترقی کی. وہ ترقی ریفلیکٹ ہوئی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی. سو اگر ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جی پاکستان گرے لسٹ میں دوبارہ چلا جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں اور پاکستان نے اس وقت اپنی سالمیت کو سب سے پہلے رکھنا ہے. آپ کے اپنے ڈیسیجنز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں. اس وقت سرٹنلی لیکن سرمایہ کار تو نوٹو کے بارے میں سوچ رہا ہے نا, اس نے تو سالمیت کے بارے میں تو اس نے گورنمنٹ کو سوچنے پہ لگایا ہے. اس کی ٹینشن یہ ہے کنٹری ریٹنگ خراب ہو گئی تو پھر اس کے بعد کہیں اور پرابلمز نہ کریٹ ہوئی, ایسا تاثر ہے لوگوں کے ذہن میں. انویسٹر گھبرائے ہوئے اس وجہ سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کنٹری ریٹنگ امپیکٹ ہو وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جتنے ماموں تایا ہیں بلومبرگ اور ورلڈ بینک IMF, ان کے ہماری طرف کیا ریئیکشنز ہوں گے, اس کے بارے میں کچھ آپ کی رائے ہوگی کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل جی, جب آپ گرے لسٹ میں جاتے ہیں یا آپ خدا نخواستہ بلیک لسٹ کی تو بات نہیں کرتے, لیکن جب آپ یہ واچ لسٹ پہ چلے جاتے ہیں نا گرے لسٹ پہ, تو کنڈیشنلٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ کے لونز دینے کی جو یا لینے کی کیپیسٹی فرام IMF فرام یعنی ان ادر ورڈز آپ پروبیشن پر آ گئے, آپ پروبیشن پہ آ گئے سارٹ آف, اور جو آپ پہ مختلف قسم کے چیکس ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. آپ کی بینکنگ کی کاسٹ انٹرنیشنلی بھی انکریز کر جاتی ہے کیونکہ آپ ایک ایسی لسٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ غلط قسم کی فائنینسنگ یا غلط قسم کے فنڈز نہ ٹرانسفر ہو جائیں. تو وہ ساری آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو متاثر کرتا ہے اور اس کاسٹ کو انکریز کرتا ہے. لیکن میں پھر یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پریشر ہے وچ از لیڈ بائی US. یہ اس کا شاخ خسانہ ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان نے جو گینز کیے ہیں آن دا بیک آف اٹ سیکیورٹی فورسز, جو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ٹیررزم کے خلاف ایک لڑائی کی گئی اور اس لڑائی کو بڑے سکسیسفلی جیتا گیا, یہ بہت ہی کمینڈیبل ہے. دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے, لیکن جو لاسز ہیں افغانستان کے آج وہ اگر پاکستان کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے, میرے خیال میں یہ ایک مثبت اپروچ نہیں ہے. بہرحال ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہیں اور اے پولیٹیکل ہیں, پولیٹیکل سائڈ پہ بات زیادہ نہیں کرتے, لیکن جو چیز کسی نے اچھی کی ہو اس کو ہمیشہ اسے ریکگنائز کرنا ضروری ہے, اس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. خیر باتیں تو یہ بھی گردش میں رہیں کہ وہ گرے لسٹ میں ڈالنے میں ہمارا سمندروں سے زیادہ گہرا اور پہاڑوں سے زیادہ اونچا دوستی رکھنے والا دوست چین بھی شامل تھا. خیر دل کو دکھ پہنچا, لیکن کوئی بات نہیں, پہلی دفعہ تو ہمارے ساتھ کسی نے بے وفائی نہیں کی. ہم تو پتہ نہیں کس طرح کے ٹھکرائے ہوئے عاشق بن چکے ہیں, جس کی مرضی ہوتی ہے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دیتا ہے. خیر جانے دیں اس بات کو, سی پیک کی طرف آتے ہیں. ہماری محبتیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں. سی پیک کے متعلق آپ بہت بڑا انویسٹمنٹ گروپ ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی بھی رائے ایک سامنے آنی چاہیے. سی پیک کے متعلق مختلف لوگوں کی رائے تبدیل ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ پچھلے سال 2016 میں 29 نومبر کے بعد ایک بندہ یہاں سے چلا بھی گیا. Some people say we sent the wrong sheriff to Jeddah. But anyway, after that سی پیک کے بارے میں تاثرات تبدیل ہوئے ہیں. آپ کے خیال سے کیا واقعی میں انویسٹر کے بھی تاثرات تبدیل ہوئے ہیں سی پیک کے متعلق؟ دیکھیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک آپ کے آنے والے پاکستان کے مستقبل کو بے پناہ روشن کرے گا. یہ جو تاثرات دیے جا رہے ہیں نا کہ سی پیک کچھ نہیں ہے, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ اور یہ وہ فلانا, ابھی حال میں ہی ایک ہماری کمپنی نے JS گروپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں سینیٹر مشاہد حسین سید کے ساتھ مل کے ہم نے کولیبریٹ کیا, چائنیز کلاسز پروفیشنلز کے لیے لانچ کی. اس کا فنکشن ہوا اور وہاں پہ فیکٹ ورسز فکشن کی سی پیک کے اوپر ایک رپورٹ بھی دی گئی کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بالکل فکشن ہیں, ان کو فیکٹ کی طرف لانا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اصل حقیقت یہ ہے. مگر اس کے کہتے کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں سی پیک کے اپنے چیلنجز ہیں. ہر کوئی ایسا جو بڑا معاشی معاہدہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ آن گوئنگ ہوتے ہیں, ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. مگر یہ کہنا کہ جی سی پیک جو ہے یہ کوئی بہت بڑا ایک صرف دکھاوے کے لیے چیز ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. سی پیک ایک اسٹریٹجک اور ایک اکنامک ضرورت ہے چائنا اور پاکستان کی. کامران ناصر صاحب اس کے اوپر ہم بات کریں گے, بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں, لیکن فکشن, کیونکہ میں فکشن کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ضرور جو ہے اس میں حقیقت ہوتی ہے. میں آپ سے یہ جانوں گا بریک کے بعد کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ریئلٹی جیسے فیکٹ اور فکشن کے بارے میں آپ نے بتایا, اس کے درمیان ڈفرنس پاکستان میں کیا ہے سی پیک کے متعلق. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम जनाब कामरान नासिर साहब के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं JS ग्लोबल के। वैसे अमूमन मेरी ख्वाहिश भी हमेशा से ये रही है, क्योंकि मैं अब खुल के बात कर देता हूँ, क्योंकि एम ये होता है कि हमेशा जो है हम कोशिश करते हैं कि बिग 5 के बड़े अहम लोगों को बुलाएं। अकील करीम डैडी साहब भी तशरीफ़ लाए, आरिफ हबीब भी तशरीफ़ लाए, लेकिन क्या होता है वो उनको हमारे लिए बड़े बाइज़्ज़त हैं। लेकिन मेरी आज ख्वाहिश ये थी कि जहांगीर सिद्दीकी साहब की तरफ से भी कोई आए, उनके ग्रुप की तरफ से भी कोई आए, तो ये कामरान नासिर साहब आ जाए और बड़ी बैलेंस्ड बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बात की असल में CPEC मेरी छेड़ है और इनको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ना हो। अब इन्होंने कहा है फैक्ट एंड फिक्शन, तो मुझे ये बताएं सर कि ये जो नैरेटिव गवर्नमेंट पेश कर रही है ज़ाहिर बात है आपके ख्याल से क्या ये ओवर एग्जैजरेटेड है, रियलिस्टिक है, या जैसे आपने कहा कि इसके रास्ते में इतने चैलेंजेस हैं कि इसके पोटेंशियल को अचीव करने में वक्त लगेगा? मैं चाहूँगा इसमें थोड़ी अपनी राय दें और कोशिश करें कि 100 में से कुछ नंबर भी दे दें, ताकि नाजरीन को भी पता लग जाए कि 100 में से आपने कितने नंबर देकर गवर्नमेंट की एम्बिशंस को पास किया है। थैंक यू जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमने बात किया कि इसमें कितने चैलेंजेस हैं कितने नहीं हैं। आमतौर पे लोगों का ख्याल है कि जी ये वैसे शुरू हुआ था 46 बिलियन डॉलर से, ये पहुंच गया अराउंड 60 बिलियन डॉलर्स। इसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चली गई है, जिसमें से अबाउट 35 बिलियन डॉलर सिर्फ पावर सेक्टर पे जा रहे हैं। रिमेनिंग इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। आपकी रोड्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, पोर्ट बन रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं आपके पास। लोगों का जो ख्याल है ना कि ये 60 अरब डॉलर लगेगा और उसके बाद कोई दूसरे साल से पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी कोई मुआशी तब्दीली आ जाएगी, जी जी जी, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये आपकी एग्जिस्टेंस के साथ रहना है और ये बहुत आगे तक चलेगा। हाउ लॉन्ग? ये देखें, इसके सही असरात जब पाकिस्तान पे आना शुरू होंगे, मेरे ख्याल में यू आर अबाउट 3 to 5 years अवे, और प्रॉपरली जब आप पूरे तरीके से एनकलकेट हो जाएंगे तो 10 साल प्लस चला जाएगा। देखें, 3 से 5 साल में आपको एक इफेक्ट महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप देखें जहां सड़क पहुंचा दी जाती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर देते हैं, तो वहां पे तरक्की पाना शुरू होती है, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं। आपने पावर सेक्टर का जो एक शॉर्टफॉल था, आपने उसको एड्रेस करने के लिए निकले हुए हैं। वो जब एड्रेस होगा तो इसका मतलब है कि पावर सिस्टम में आएगी, सरप्लस में भी चली जाएगी, तो इंडस्ट्री के पास एक कैपेसिटी होगी टू ग्रूम एंड टू गो। ठीक है, तो वो होना शुरू हो जाएगा। बट आई एम लुकिंग फॉर मनी, यू सी, आई हैव वेरी रॉ इमोशंस। मेरी एम ये है कि मुझे डॉलर मांगता है, मुझे ये 40 अरब डॉलर चाहिए, मुझे पुल भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, पुल, सड़कें, एयरपोर्ट वगैरह सब बनाए, पर मुझे हार्ड कैश चाहिए। वो कब मिलेगा मुझे? देखें, वो आता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। हाँ, वो चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि हम अभी रिसेंटली हमने JS हमने होस्ट किया था, 13 कंपनीज को अमेरिका लेके गए थे, और वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हमें होस्ट किया। उसके बाद हम बॉस्टन, शिकागो, और करते करते हमें स्टेट डिपार्टमेंट ने US के वाशिंगटन में होस्ट किया। ठीक है, और सबसे प्रोमिनेंट जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज देयर इन CPEC फॉर अस? इज CPEC ऑल अबाउट चाइना? सिर्फ चाइना के लिए है या इसमें सब उससे मुस्तफीद हो सकते हैं? तो वहाँ पे इसी तरह से एक पावर कंपनी हबको है जो बहुत बड़ी IPP है, उसके CEO बैठे हुए थे, खालिद मंसूर साहब। उन्होंने बताया कि जी कि इस वक्त जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे अगर इक्विपमेंट आ रहा है तो वो जनरल इलेक्ट्रिक का आ रहा है, अगर मशीनरी आ रही है तो इसको कैटरपिलर सप्लाई कर रहा है। और देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएगा? कहाँ पे जाके आप किसी चीज़ को, आपने कोई अगर इंडस्ट्री लगानी है और आप कहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगानी है, अगर एक्सेस ही नहीं होगी, उसका इनेबलिंग नेटवर्क ही नहीं होगा, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। सो देखें, फेज़ 1 इज़ क्रिएटिंग द नेटवर्क, क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। फेज़ 2 इज़ योर पोजिशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नैरेटिव दुनिया में, मेरे नज़दीक, हमने हमेशा कमज़ोरी जो हमारी रही है वो हमारे नैरेटिव की रही है। पाकिस्तान को अपना नैरेटिव बाहर जाके लोगों को बताना चाहिए, इस पर मज़ीद फोकस करना चाहिए। ये FATF के ऊपर जिस तरह की एक नेगेटिविटी स्प्रेड की गई, पाकिस्तान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। देखें, आपके चैलेंजेस हैं, मगर हम इस बात को यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत लाइट नहीं लेंगे। इट विल बी टेकन अप वेरी स्ट्रांगली। वी आर फाइटिंग। हम एक जियोपॉलिटिकल एक ऐसी सिचुएशन पे हैं, एक ऐसे कस्ब पे पाकिस्तान है कि आप इर्द गिर्द तो देखें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, ऊपर चाइना में क्या हो रहा है, और आप सेंटर में हैं जहाँ पे आप चारों साइड्स को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सुपीरियरिटी की रेस है, अनफॉर्चुनेटली ये इमेज जो है ना, दिस इज डेवलप्ड बाय बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल हु आर इन्वेस्टर्स। इंडिया का इमेज जो है, मे बी आई डोंट थिंक कि वो इंडिया की गवर्नमेंट लेकर गई है, बल्कि वो टाटा, बिरला, अंबानी,
ये लेकर गए हैं बाहर थ्रू इन्वेस्टमेंट विंग्स। उनके NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो जैसे हमारे यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने उनके मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। देव ब्रॉट a lot of money back into their country. They have channeled enormous amount of funds in their country. ये जो मतलब ये है कि वो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, उसका जो पहले को प्रेसिडेंट था उसका नाम था विजय सी एडवानी। ओह, ये बहस तो कहीं गलत चली जाएगी। नहीं, मैं वापस आपको ले आता हूँ। नहीं, उसका दफ्तर तो गुड़गांव मुंबई में था, बाकी शेयर OGDC के खरीद रही थी। लेकिन मैं कुछ उस बारे में कोई अपनी राय नहीं दूंगा। बट नॉनदलेस यू नो दीज इंडियंस आर गोइंग देयर एंड दे आर, हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कर रहे, डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बताएं। आप ये मतलब नैरेटिव की बात करते हैं, हम मीडिया वाले तो इंडिया में भी यही फैलाते रहते हैं खबरें, पाकिस्तान के अंदर भी हमारा यही काम है कि हम चटपटी बातें करें। हम नैरेटिव थोड़ी देंगे, नैरेटिव आप लोग देंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट देखिए, आपका ख्याल दुरुस्त है और ये हैंड इन हैंड जॉब है। गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और वहाँ जो कमजोरियाँ और खामियाँ हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर को ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और उन्हें लेने चाहिए। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि जी JS ग्रुप जैसा प्लेटफॉर्म है। हमने देखें जब पाकिस्तान MSCI में गया था इमर्जिंग मार्केट्स में, तो ज़ुबैर साहब उस वक्त प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, उनको हम लेके लंदन गए। हमने एक छत के नीचे $20 ट्रिलियन मैनेज करने वाले फंड थे जिनको जाके हमने पाकिस्तान की स्टोरी पिच की, पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाई। दर्द शुरू हो गया। ये बेसमर दरख्त MSCI के अंदर क्यों मुझे ले आए आप? ये MSCI के अंदर हम आ तो गए लेकिन इसने हमें कुछ ना दिया। ये दुख, ये क्यों मेरे जख्म हरे कर रहे हैं आप? बाद में आपकी मान लेता हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छी अचीवमेंट थी हमारी और आप लेकर भी गए, लेकिन आपने मेरे जख्म हरे कर दिए। MSCI से मेरे पास पैसे नहीं आए, बल्कि जब से ये क्या बोलूं MSCI में नाम आया, मार्केट बेचारी हमारी मार खाए जा रही है। क्या मसला है ये मुझे बताएं, अभी मैं आपको इस पे लेकर आता हूं। जी अली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगेन एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि अगर शायद MSCI इमर्जिंग मार्केट में जाना था हमने, तो शायद पाकिस्तान में डॉलरों की रेल पे लग जाती अगले 2 हफ्ते में या 3 महीने में। भाई फिर क्या हुआ? ये तो बैटल जो है, आप इस मार्केट में आए हैं रहने के लिए। ठीक, आप 2008 तक इसका हिस्सा थे, 2008 में आपने मार्केट बंद की, आपको सजा के तौर पे निकाल दिया गया। इमर्जिंग मार्केट्स आपका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। देखिए, फ्रंटियर मार्केट्स यहाँ पे हैं, ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, एंड देन यू हैव डेवलप्ड मार्केट्स। सो आपने एक लेवल ग्रेजुएट किया। जब लेवल ग्रेजुएट करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री की आउटलुक, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, साइज ऑफ द इकोनॉमी, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की इफेक्टिवनेस, हर चीज़ उसको मैटर कर रही होती है, हर चीज़ उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। इसके असरात हम 2-3 महीने 4 महीने की जो एक्सोडस देखी हमने इन्वेस्टमेंट की, वो इसलिए हुई थी कि आप इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड भी पढ़ेंगे ना, तो हमेशा जब भी किसी नेक्स्ट मार्केट में मार्केट ग्रेजुएट करने लगती है तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती है और मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है। तो और जो ही जब वो मार्केट में होता है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, 100% जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसा हो, लेकिन जो ही इमर्जिंग मार्केट में आप जाते हैं, जैसे दुबई गया, दूसरी कंट्रीज क्लासिफाई हुई, तो साथ ही उन्होंने एक डिप लिया, एक ब्रीदर ली। नहीं, हमारे एनालिस्ट ने वादा किया था कि ट्रैकर फंड जो हैं वो आंखें बंद करके यानी अंधे होकर पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे। उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, इमीडिएटली जब हम ग्रेजुएट कर जाएंगे इधर, तो ट्रैकर फंड ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, पैसा उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में लगाना पड़ेगा। देखिए, जबरदस्ती की बात हो गई ना, लेकिन देखें अली, जो आपके पैसे फंड्स थे, एक दिन के अंदर $450 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था 31 मई को। प्रॉब्लम ये थी कि जिन्होंने फ्रंटियर मार्केट से एग्जिट लेना था, उनका क्वांटम बड़ा था। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें, आपके फ्री फ्लोट का मेजॉरिटी तो जो, लेकिन वो एडमिशन डेट थी ना, ग्रेजुएशन डेट थी। वो ग्रेजुएशन डेट थी। ग्रेजुएशन डेट जो होता है वो एक लिक्विडिटी इवेंट होता है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। अगर $500 मिलियन का एग्जिट लेना है और आप नॉर्मल मार्केट में काम करेंगे, तो आप तो ऐसे एग्जिट नहीं ले सकते। आपको कोई ऐसा लिक्विडिटी इवेंट चाहिए होता है जहां पे एक फ्रेश मनी इंजेक्ट हो रही हो और जिसने एग्जिट लेना उसमें से एग्जिट। तो आप कह रहे फ्रेश मनी आया था? बिल्कुल आया था। टिका नहीं, वो टिका है, वो चल भी रहा है। जिन्होंने एग्जिट लेना था उन्होंने लिया। देखें, आप एक ऑल टाइम हाई मल्टीपल पे नहीं तो हाई लेवल पे चले गए थे। वो भी एक मिसनॉमर है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी अगर 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है तो आप पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। ये मार्केट बहुत चीप है, इसका पोटेंशियल, इसमें वैल्यू अभी कहीं ज़्यादा है। ये कल को इंडेक्स, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन सही हो, आपके इलेक्शंस हो जाएं, नई गवर्नमेंट आ जाए, तो आप देखेंगे कि दोबारा 55,000 53,000 ये जो इंडेक्स को उसने टच किया था, ये उससे कहीं आगे आई रिजर्व माय कमेंट्स एंड कमेंट्री हियर। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं आपकी बात से ना इख्तिलाफ करूंगा ना इत्तिफाक करूंगा, लेकिन आपकी राय अपनी जगह मौजूद है। यह ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक। बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मचल रहा है कि ये बात मैं ज़रूर करूं। बिग फाइव के बारे में बहुत सारी बात होती रही। अब बिग फाइव में से ऐसा लोगों का कहना है कि 3 बच गए, एक को तो शायद घायल और ज़ख्मी कर दिया गया, दूसरा जो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स की वजह से प्रॉब्लम्स में आ गया। तो अभी बिग 3 ही कह लें, उन बिग 3 में से ही जो हैं वो हम बुलाते भी हैं लोगों को। तो आज हमारे साथ कामरान नासिर साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू जेएस ग्लोबल की जानिब से। सर, ये जो बेसिकली राइवलरीज़ हैं, मैं क्योंकि इतना ज़्यादा इसको वो क्रिएट नहीं करना चाह रहा कोई कंट्रोवर्सी, लेकिन राइवलरीज़ या टग ऑफ वॉर जो है ये मेरे ख्याल गैर मुनासिब है मार्केट के अंदर। मे बी आपके राइवल्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वोकल हैं, लेकिन आप लोग इतनी माइल्ड टेम्परामेंट रखते हैं, ये खुला तगाद नहीं है। वो लगे हुए हैं अपना और आप खामोशी से खेल रहे हैं, ये क्या बात है, ये क्या स्ट्रेटजी है? देखिए अली, मतलब कि मैं राइवलरी से हट के बात करता हूँ। जी जी, जो इस वक्त दुनिया का ट्रेंड है या जो हमारी कॉर्पोरेट फिलॉसफी है, हम सिर्फ एक चीज़ में यकीन रखते हैं, और ये चीज़ हम नीचे अपने तमाम कोलीग्स में और जिसे कहते हैं ना कल्चर में आपको एनश्राइन करना होता है, और वो ये होता है कि आपको अपनी कारकर्दगी से साबित करना होता है कि आप किस जगह पे हैं। मैं अगर आज बर्मला कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट्स फर्म चला रहा हूँ, जेएस ग्लोबल इज़ द लार्जेस्ट कंपनी, या जेएस ग्रुप जो है फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स है, उसके पीछे फिर आपके पास शो करने के लिए स्टैट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ज़ुबानी कोई बात कह के जाऊँ और उसको लोग तस्लीम कर लें, क्योंकि ये बड़ी एजुकेटेड वर्ल्ड है। आज लोग देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जो हमारा तरीका है, हमारा स्ट्रक्चर कॉर्पोरेटाइज्ड। बट दे माइट से कि यू आर सेइंग इन अ कंसोलिडेटेड सेंस, सिंस यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ कंसोलिडेटेड वे, दे आर रनिंग इट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे, दे मे कंटेस्ट इट एज अ ग्रुप। आई एम नॉट सेइंग दिस, मे बी दे से दिस कि जी ये स्टेटमेंट मे बी करेक्ट हो सकता है, सिंस यू रन इट इन अ वेरी कंसोलिडेटेड वे, दे डू इट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वे। देखें, अब मैं अगर सिर्फ अपनी कंपनी की बात करूं और बाकी कंपनीज को छोड़ देता 2 मिनट के लिए, सो अगर मैं जेएस ग्लोबल की बात करूं तो वो अपनी इक्विटी साइज़ के ऊपर, बैलेंस शीट साइज़ के ऊपर, अपनी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन ब्रोकर डीलर्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, आप नाम लें, वो सारे हमारे साथ काम करते हैं। सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क पाकिस्तान में। चल, मैं उसमें कोई डाउट नहीं करता, क्योंकि वो उस तरफ चला जाएगा कि वो तो फिर इस तरह से हो जाएगी कि आपकी शोहरत और तशहीर हो जाएगी, वहां थोड़ा गलत हो जाएगा जी। लेकिन ये कि जाहिर बात है जो चीज़ होती है दिखती है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर तशहीर से हट के, वो मेरा जो बुनियादी सवाल था, क्योंकि आप बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, आप थोड़ा उसको अवॉइड कर जाएंगे, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसको राइवलरी को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आपके सामने समझूं। बिजनेस राइवलरी वो थोड़ी पर्सनल नौयत की हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई वो पर्सनल ले लेते हैं, आप लोग जवाब नहीं देते। वो अगर पत्थर मारते हैं, कंकरी मारते हैं, आप भी वापस एक पत्थर मार दिया करें, कुछ बोले ना, कुछ देखें, तो हम आप कहते कुछ नहीं है, वो लगे रहते हैं आप पे पत्थर मारना, आपको जवाब नहीं देते, कोई जवाब तो दें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपसे कहा कि जवाब आपका परफॉर्मेंस होता है, और बिजनेस राइवलरीज अच्छी चीजें होती हैं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वो तो पर्सनल हो गए ना, वो तो देखिए वो किसी का अपना मसला है, कोई पर्सनल होना चाहता है होता रहे। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, अगर कोई पर्सनल होना चाहता है, वो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई भी हो सकता है उठ के जो पर्सनल होना चाहे वो पर्सनल हो। सो यू डोंट वांट टू यू नो वी डू नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। आस्तीने ऊपर करके आप लोग अखाड़े में नहीं उतरना। नहीं जी, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी हैव टू वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। देखें सक्सेस, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, हमारे बहुत सारे पीयर्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका जो सक्सेस का मॉडल है, दैट इज इन कॉर्पोरेटाइजेशन, दैट लाइज इन बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग एथिकल एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट। दैट इज यूनिवर्सली करेक्ट। डू यू फील कि ये जो टग ऑफ वॉर है, इसने मार्केट को 2006 के एंड में नुकसान पहुंचा है आपके ख्याल से? 2006 के एंड में? 2016, 2016, 2016 के आपको पता है एंड के ऊपर काफ़ी मल्टीपल प्रेशर्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फिर ऑब्वियसली इट हैज कंटिन्यूड। देखिए, आई एम नॉट अवेयर कि किसी टग ऑफ वॉर से वैसे आपसे, लेकिन मैं वैसे कहूंगा कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, इज राइवलरी गुड इन दिस फील्ड? राइवलरी देखिए हर जगह प्रोफेशनल होनी चाहिए, व्हिच इज गुड, But not beyond that. नहीं, नॉट बियॉन्ड दैट। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। देखिए, अगर आप किसी चीज को पर्सनल करेंगे, वो कोई भी कर रहा हो, वो मैं कर रहा हूं या कोई भी कर रहा हो, तो दैट इज, यही तो इन्वेस्टर तंग है, दैट इज ये मामला इतना ज्यादा। आपकी प्रोफेशनलिज्म इंटैक्ट रहना चाहिए। प्रोफेशनल राइवलरी इज ऑलवेज गुड। मैं तो देखें फिलॉसफी जिस पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, देखिए बड़ी सिंपल बात है, लेकिन उससे आगे नहीं जानी चाहिए बात। नहीं, किसी सूरत में नहीं जानी, फिर बिगाड़ पैदा होता है। जी बिल्कुल होता है, वो हर शोबे में होता है, वो चाहे आप मीडिया ले लें या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लें, कहीं भी इफ यू वुड स्टेप एंड क्रॉस एनी लाइन, सो दैट इज नॉट गुड। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको दूसरी जानिब लेकर आता हूँ। अच्छी बात है, आपने बैलेंस जवाब दे दिया। पता नहीं देयर वर नो फायरवर्क्स, मैं तो सोच रहा था कुछ
फायर वर्क्स होंगे पर नहीं हुए। खैर एनीवे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। एवरी डे इन्वेस्टर्स आर लुकिंग टूवर्ड्स कि भी अब क्या होगा। अभी आपको पता है कुछ करप्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डू यू थिंक कि कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट जो है ये स्ट्रेंथन करती है इकॉनमी को, या आपके ख्याल से अगर स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए तो यही बहुत है? क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत सिंपल बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री कोई बहुत लंबी है ही नहीं। आपने 2013 में पहली बार देखा कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दूसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना जो चार्ज है वो पास ऑन किया। 5 साल कंप्लीट किए, अच्छे थे बुरे थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जमहूरियत जड़ पकड़ रही है। उसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अगर आज जमहूरियत, यू सी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर देखता है। आप जो ही किसी चीज़ को उसमें ले आते हैं ना कि इसमें अनसर्टेनिटी आ जाए, तो अनसर्टेनिटी कभी भी ना किसी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को पसंद है ना किसी फॉरेन इन्वेस्टर को पसंद है। और मुझे जो आई थरली एंजॉयड, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि बीच में तिश्नगी रह जाए। वक्त की किल्लत की वजह से प्रोग्राम जो है वो फिर आधा अधूरा रह जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि मेहमान को दोबारा से दावत देने का मौका मिल जाता है। मैं चाहूँगा कामरान नासिर साहब मुस्तकबिल में भी आप भी तशरीफ़ लाएँ, जहांगीर सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाएँ। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।